Hello dear students. In the previous lecture we have discussed generalized measuring system. So what is we are taking the overview of generalized measuring system. In generalized measuring system there are 5 elements. First one is the primary sensing element. Second one is the vari, uh, variable conversion element or primary conversion elements. Next is the primary manipulation element or variable manipulation element. Then data transmission element, and then last is the data presentation element. Now today we are going to discuss metrology and types of metrology, elements of metrology, and last is the need of inspection. So let's start. So first of all, what is metrology? So basically metrology in a small sense, it is the science of measurement. So what is metrology? Metrology means field of knowledge concerned with a measurement and includes both theoretical and practical problem related to measurement. It means metrology is the science through which we can develop the measurement methods theoretically as well as practically. And it also helps to develop the establishment, reproduction, and transfer of units. If you want to convert one unit into the other unit, for example, centimeter is converted into meter. So we should have the knowledge of metrology. So what is the types of metrology? Types of metrology are of 3 types. First one is the scientific metrology. Second one is the industrial metrology. And third one is the legal metrology. So first we will discuss scientific metrology. Scientific metrology means form of metrology which deals with the organization and development of measurement standard and with their maintenance. For example, I have told you that all the standards which are related to fundamental units are kept in International Bureau of Weights and Measures, Survey, France. So scientific metrology means it develops the organization and helps in the development of the standards and their maintenance. So International Bureau of Weights and Measures is what? It is an organization where the standards are developed and they are kept in the controlled condition, environmental condition, etc. So scientific methodology deeply involved research and new technologies which are going to be used in industry concerning government, healthcare, and research for commercial products. Because first of all, we will standardize the product. After that, it will go to the market for commercialization. So this is the scientific metrology. Next is the industrial metrology. Industrial metrology, as the name indicates, industrial. It is related to the industry. Industrial metrology purpose is to ensure that industry used in a wide variety of industry are functioning properly. It means, let us suppose you are taking an example of vernier caliper and you are using vernier caliper in your industry. So that vernier caliper is working properly or not, it is working properly or not. If there is some error in it, you have to remove that error. So this is the part of industrial metrology. For example, it is seen in the production of products for the commercial industry, the testing and designing of aircraft, the functioning of large machinery, because all the designing and research parameter for anything. If you are designing a vernier caliper, if you are working for the vernier caliper, then it should be a proper and accurate instrument. अगर बेटा उसमें कोई खराबी आ जाती है तो वो भी आपको रिमूव करनी होगी, उसमें कोई एरर आ जाती है तो आपको रिमूव करनी होगी. So this is the part of industrial metrology. And the last one is the legal metrology. Legal, as the name indicates, legal. It is related to the all the legal advices. So what is legal metrology? It regulates, advise, supervise, and control the manufacturing and calibration of measuring instrument. बेटा लीगल मेट्रोलॉजी में आप क्या करते हैं? लीगल मेट्रोलॉजी में आपको ये बताया जाता है कि आप कैलिब्रेशन किस कंडीशंस के अंदर रख के करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन में और कैलिब्रेशन करने बैठ जाएं इंस्ट्रूमेंट का. यानी कि अगर उसमें कोई एरर आ गई और आप उसको वो रिमूव करना है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आपको फॉलो करनी होती है उनको सही करने के लिए. तो आपको लीगली वो सब चीज सही करनी होगी. So this is the part of legal metrology. So legal metrology mainly focuses on the calibration to decide the condition of calibration of measuring instrument
It also helps in buying and selling of material for economic study. It means if you are buying or selling some material related to the measurement, if you want to manufacture a measuring instrument, so for that, if you want some material, then legal methodology decides that which kind of material you have to purchase. So this is the legal methodology. So these are the types of methodology. I am again reviewing it. First one is the scientific methodology, next is the industrial methodology, and last one is the legal methodology. Now there are many elements of metrology. So now we will discuss elements of metrology. Elements of metrology are of 5 types. We have already learned standard, then the workpiece on which we have to carry out the manufacturing process. It is the workpiece. Second one, instrument which we use to measure the things while manufacturing, and it's for final inspection. Next is person, the person which will do the manufacturing of the component, and it will do the operation on workpiece or material. And the last one is the environment. अब बेटा ये जो 5 चीजें, आप अगर स्टार्टिंग के सारे वर्ड ले लो तो the short form of these 5 element is SWIPE, SWIPE. तो स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपकी चीज स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, आपके जो ऑब्जेक्ट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. दूसरी चीज आपका वर्कपीस किस मटेरियल से बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, उसकी भी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए. थर्ड वन इज द इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप वर्कपीस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कार बना रहे हैं, तो उस कार के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उनका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज की जाएंगी, इसमें वो डिसाइड होता है. एंड फोर्थ वन इज द पर्सन भी क्या है बेटा, एक एलिमेंट है मेट्रोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज जो मेजरमेंट करता है वो पर्सन ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है वो पर्सन है. ठीक है, तो फाइनली आपके सारे जितने भी कंपोनेंट है एरर के, वो आपके मोस्टली पर्सन पे डिपेंड है, क्योंकि पर्सन आपका वर्कपीस पे वर्क कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है मेजरमेंट के लिए वो ही यूज कर रहा है. ठीक है, तो आपका पर्सन भी हाईली एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए उस पर्सन को. ठीक है, तो और आपका एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे यूज करना है ना, और पर्सन को पता नहीं था, उसने वो यूज कर लिया 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो हो सकता है मेजरमेंट में थोड़ा आपका दिक्कत आ जाए. तो इसीलिए आपको ये सारे 5 एलिमेंट्स, दैट इज द स्टैंडर्ड वन, वर्कपीस, इंस्ट्रूमेंट, पर्सन, एनवायरनमेंट, ये all the 5 elements must be known to you, and all the error which come into manufacturing or measurement are totally the responsibility of these 5 elements: standard, workpiece, instrument, person, environment. So these are the elements of metrology. And the last is need of inspection. We are talking about measurement, we are talking about standard. ठीक है, तो बेटा इन सब चीज का यूज क्यों है, मतलब क्या जरूरत है कि हम इंस्पेक्शन करें. ठीक है, पहली बात, आप इंस्पेक्शन हर चीज का करते हैं. ठीक है, आप अगर मान लीजिए कोई शर्ट स्टिच करा के लाए मार्केट से, आप उसको पहन के देखेंगे. ठीक है, वो आप इंस्पेक्शन ही तो कर रहे हैं उसका, आप यही तो चेक कर रहे हैं कि वो सही हुआ या नहीं हुआ, टाइट है या लूज है. ठीक है, तो वो इंस्पेक्शन हुआ. ये एक मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया है, आपका इसका मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो पूरा मेजरमेंट के उसमें बताऊंगा कॉन्सेप्ट में. टू एंश्योर दैट द पार्ट, मटेरियल और अ कंपोनेंट कंफर्म्स टू द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड. बेटा इंस्पेक्शन क्या बताता है, इंस्पेक्शन क्या करता है, जो भी आपका पार्ट है, जो भी आपका मटेरियल है, या जो भी आपका कंपोनेंट बना है, वो पर स्टैंडर्ड बना या नहीं बना. तो इंस्पेक्शन की हमारी यहाँ नीड है कि जो भी आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डिजाइन हुआ है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर हुआ है, और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड और नॉट. ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. सेकंड वन है आपका टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर. टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर. इंटरचेंजेबिलिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अब इसका आपको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ. ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास कोई कार है, और कार में आपके जब आपने नई कार ली तो उसमें आपके 5 टायर्स लगे होते हैं.
4 टायर्स और आपकी 1 स्टेपनी, ठीक है। और लेट अस सपोज आपके एमआरएफ के टायर लगे हुए हैं आपकी कार में, आपने यूज की कार 2-3 साल बाद क्या हुआ कि आपकी स्टेपनी खराब हो गई, एमआरएफ की जो स्टेपनी थी वो खराब हो गई, अब आपको स्टेपनी चाहिए और आप लगी हुई आपके आई थी एमआरएफ की, तो आप चाहेंगे कि एमआरएफ की मिल जाए आपको स्टेपनी। मान लीजिए आप ऐसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहाँ एमआरएफ की आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो क्या आपकी फिर कार बेकार हो जाएगी क्योंकि आपके टायर तो खराब हो चुके हैं, ठीक है। तो बेटा उसमें आप करते हैं, कोई भी कंपनी जब डिजाइन करती है, फॉर एग्जांपल मारुति अपना डिफरेंट वेंडर्स को ऑर्डर दे देती है, फॉर एग्जांपल जेके टायर्स को भी देगी, एमआरएफ को भी देगी, ठीक है। और जैसे स्विफ्ट कार है, स्विफ्ट कार के लिए वो जेआरएफ एमआरएफ को भी देगी, जेके टायर्स को भी देगी, गुडियर को भी देगी, तो सबको ऑर्डर दे देती है और सबके ऑर्डर फिर कंपनीज में आते हैं। तो जरूरी नहीं है एक स्विफ्ट में अगर एमआरएफ के टायर लगे तो दूसरी में भी एमआरएफ के लगे हो सकता है उसमें जेके टायर लगे, ठीक है। और कंपनीज ये आपकी मार्केट में भी लॉन्च कर देती हैं अपने जो टायर्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एमआरएफ का टायर नहीं मिलता तो आप उस शॉपकीपर से पूछोगे तो वो मना कर देगा, नहीं मेरे पास एमआरएफ का टायर नहीं है, लेकिन वो ये बोलेगा मेरे पास स्विफ्ट का गुडियर का टायर है, तो आप गुडियर का टायर लगा लोगे अपनी कार में क्योंकि वो उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं जो स्विफ्ट के लिए डिजाइन किए गए, ठीक है। सो दिस इज इंटरचेंजेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 बोतल हैं, ठीक है, एक बोतल छोटी है एक बोतल बड़ी है, अगर आप ये चाहो कि जो छोटी वाली बोतल है उसका जो कैप है वो दूसरी वाले पे आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं, वो इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है क्योंकि आप तो बिल्कुल साइज ही चेंज कर दे रहे हो, ठीक है। जो जो भी कंपोनेंट है, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स बने हैं वो अगर सेम है, वो अगर सेम है, उनकी डिजाइन सेम है, उनके सब कुछ सेम दिया गया है तो उस उनके अंदर इंटरचेंजेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरचेंजेबिलिटी आपकी 2 टाइप की होती है, एक यूनिवर्सल, तो जो मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया था एमआरएफ टायर का, वो आपकी यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी थी, आप कहीं भी चले जाओ स्विफ्ट का टायर या तो आपको एमआरएफ का मिल जाएगा या जेके टायर का मिल जाएगा। लेकिन आपकी लोकल इंटरचेंजेबिलिटी भी होती है। लोकल इंटरचेंजेबिलिटी मींस मान लीजिए आपके पास सेलो का पेन है, ठीक है, सेम पेन आपके पास दूसरा एक और है सेलो का, ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि एक पेन आपका खराब हो गया, ठीक है, एक पेन आपका खराब हो गया, उसका कैप खराब हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे दूसरे पेन का कैप भी उस पर यूज कर सकते हो जो खराब हुआ है, ठीक है। जो सही चल रहा है उसका कैप खराब है और जो खराब हो गया पेन उसका कैप बेकार पड़ा हुआ है लेकिन सही है वो कैप जो है, तो आप उसका कैप निकाल के सही वाले पेन पे लगा सकते हो। तो आपने सेम प्रोडक्ट के बीच में इंटरचेंज किया। सो आई थिंक इंटरचेंजेबिलिटी क्लियर हो गया होगा आपको। सो इंस्पेक्शन आल्सो हेल्प्स टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। Next is to maintain customer relation by ensuring that no faulty parts reach the customer. बेटा ये आपका इंस्पेक्शन की ही जो इंस्पेक्शन होते हैं वो एक आपके कंपनी में होता है इंस्पेक्शन इंजीनियर की, उसकी ड्यूटी होती है कि अगर आप मार्केट में कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं तो उससे पहले उस प्रोडक्ट को पूरी अच्छी तरह कंप्लीटली इंस्पेक्ट कर लें कि आपके मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और उसमें कोई खराबी निकल आई तो आपकी कंपनी की जो प्रेस्टीज है वो बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए ये कंफर्म कर लेना चाहिए किसी भी मार्केट को, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले कि वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। आई थिंक थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन सॉरी फोर्थ वन इज टू डिटरमाइन प्रॉब्लम एरियाज। अब मान लीजिए आपने इंस्पेक्ट किया और कोई फॉल्टी पार्ट निकला, ठीक है, तो अब ये भी इंस्पेक्शन इंजीनियर की ड्यूटी है कि वो ये फाइंड करे कि जो एरर आ रही है, ये जो फॉल्ट आ रहे हैं, कि किस वजह से आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फॉल्ट। तो ये भी आपको इंस्पेक्शन के थ्रू पता चलता है, टू डिटरमाइन प्रॉब्लम एरियाज। नेक्स्ट इज टू जज पॉसिबिलिटी ऑफ रीवर्क ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। अब मान लीजिए हमारा कोई पार्ट डिफेक्ट आ गया किसी पार्ट में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आप उठा के और बिल्कुल वेस्ट में डाल दोगे। इंस्पेक्शन इंजीनियर की ड्यूटी है कि वो ये देखे कि वो आपका कितना उसमें वर्क करके उसे सही किया जा सकता है या नहीं। अगर सही किया जा सकता है तो देन गो फॉर इट, अगर नहीं सही किया जा सकता तो फिर आप उसे रॉ मटेरियल में डाल सकते हैं, मतलब जो आपका खराब मटेरियल है उसमें आप डाल सकते हैं। आई थिंक फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट आल्सो हेल्प्स टू परचेज गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट व्हिच गवर्न द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। बेटा अभी आपको जैसे मैंने बताया था, आपका प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है,
तो जब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो आप रॉ मटेरियल भी इंस्पेक्ट करके परचेज करोगे कि वो रॉ मटेरियल ठीक है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल आप ले आए, आपने कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और उसमें अंदर कोई फॉल्ट निकल आए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में, अगर आपको ध्यान हो तो आपने लेथ मशीन पे शाफ्ट जनरेट की थी, ठीक है। तो हो सकता है जो शाफ्ट जनरेट करते हो आप, जो भी आप जनरेट करते हो रॉ मटेरियल जो भी लाते हो, वो या तो आपको रॉड फॉर्म में मिलता है या आपको बिलेट्स के फॉर्म में मिलता है, तो बेसिकली कास्टिंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कास्टिंग में भी आपके कई तरह के डिफेक्ट होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं, पिन होल्स होते हैं, है ना। तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल आप ला रहे हो उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक तो है, ठीक है। दूसरा चीज, रॉ मटेरियल पे जब आप ले आते हो तो उन पे जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें टूल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो शाफ्ट बनाने के लिए यूज किया था वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया था, तो आपको टूल्स की भी को भी इंस्पेक्ट करके देख लेना चाहिए कि आपका जो टूल है उसका जो कटिंग एज है वो सही है नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है वो ब्लंट है तो उसकी वजह से आपका जो रॉ मटेरियल जिसका आप वर्क कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इक्विपमेंट, मशीनरीज पे आपका रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है और फाइनली आपका फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मशीनरी जो है उसमें इतने ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग खराब हो जाए। तो ये सब जो है ये इंस्पेक्शन का पार्ट है। ये मान लीजिए रॉ मटेरियल की कंपनी में आने से और फिनिश प्रोडक्ट की बाहर जाने तक, कंपनी के बाहर जाने तक पूरा जो वर्क होता है दैट इज इंस्पेक्शन। एंड इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in any company, and it also directly hit the prestige of any company. तो inspection आपका पूरा properly सही होना चाहिए from the raw material to the finished product. I think it is clear to you. So today we have discussed metrology, types of metrology, elements of metrology, and need of inspection. Thank you so much.